So hi students, welcome to the YouTube channel of Chem Lover. Today we are going to discuss lecture 6 of group 13th elements. In this lecture we will discuss borax and orthoboric acid. These two are very important compounds of the boron and they are very important from every competitive exam point of view. So let us start the topic. We are going to start the topic. First we will discuss borax and later on we will discuss orthoboric acid. Questions have been asked from these two topics and questions will be asked in near future. Because there are a lot number of questions that can arise from these concepts. So let us start the topic. We are going to start the topic. So our topic is, first we will discuss borax. Now first we will discuss borax. You can find this borax in the laboratory. You will see it in the laboratory. We'll discuss the chemistry of this borax. So what is borax? It's a white crystalline solid. It's a white crystalline solid. It's white crystalline solid. This thing is not important to remember. It's a white crystalline solid. Borax is white crystalline solid. So what is the formula of borax? The formula of the borax is Na2B4O7 dot 10 times water. 10 times water. This is the formula of the borax. So what is the formula of the borax? Na2B4O7 10 times water. This is the formula of the borax. So this is the formula. This is first important thing you have to remember. The formula of borax, that's important to remember. This is the first important thing you have to remember. We can write this formula of the borax like this also. Na2, another formula by which we can write it, Na2 B4 O5 OH4 B4O5 OH4 dot 8 times water. So this is actually the correct formula of the borax. This is actually the correct formula of the borax. You need not to memorize the things. आपको इसको memorize करने की जरूरत नहीं है. This is actually the correct formula. अगर आप टेक्स्ट देखोगे वहां पे लिखा होगा borax is the most important compound of boron. It's the most important compound of boron. Now see इस formula को कैसे याद रखोगे? This is the actual formula. This is the actual structural formula. This is actual formula of borax. Sorry. This is actual formula of the borax. This is actual formula of borax. What is actual formula of borax? Na2B4O5 OH4 dot 8 times water. This is the actual formula of borax. So you can also write it. Since यहाँ पे जो सोडियम है, it's positively charged. कितनी positive charge यहाँ पे होगी? 2 plus. तो अगर आप सोडियम को हटाओगे, you can write it like this. B4O5 OH4. तो यहाँ पे आपका 2 प्लस चार्ज है. अगर यहाँ पे 2 प्लस क्रिस क्रॉस रूल अप्लाई करके यहाँ पे आपका 2 माइनस चार्ज आएगा 8 टाइम्स वाटर. इज इट क्लियर? ये तीनों फार्मूला बहुत इजी याद रखने हैं. मैं आपको बताऊंगा हाउ टू रिमेंबर दिस फार्मूला, मतलब हाउ टू रिमेंबर दिस फार्मूला. दिस इज द एक्चुअल फार्मूला ऑफ द बोरेक्स. तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है. द फार्मूला ऑफ द बोरेक्स इज ऑप्शन 1 इज दिस, ऑप्शन 2 इज दिस, ऑप्शन 3 इज दिस. दीज ऑल आर फार्मूलाज ऑफ बोरेक्स. तो इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे सो दैट आपको आइडिया होगा ये फार्मूला कैसे बनते हैं. नाउ लेट अस ड्रा द स्ट्रक्चर. तो ये मेरा बोरॉन है, यहाँ पे BOB बॉन्ड है, यहाँ भी BOB बॉन्ड है और यहाँ पे भी BOB बॉन्ड है. बहुत ध्यान से इस चीज को देखना, यहाँ भी BOB बॉन्ड. क्लियर? तो यहाँ पे एक और BOB बॉन्ड है. नाउ सी हमारे पास जो फार्मूला है दैट्स OH4, मतलब यहाँ पे हमारा OH है, यहाँ पे हमारा OH है और यहाँ पे OH है और यहाँ पे OH. दिस इज द फार्मूला. तो देखो दिस बोरॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड दिस बोरॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड. तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 बोरॉन एटम्स, देयरफॉर B4. सो B4 आ गया हमारा, B4 आ गया हमारा. 3 बोरॉन एटम्स, 4 बोरॉन एटम्स मींस B4. दिस इज 1 2 3 एंड 4. सो दिस इज आवर 1 बोरॉन, this is second boron, this is third boron and this is fourth boron. So we have B4 come over here.
उसके बाद O5 देखो BOB मतलब दिस इज वन ऑक्सीजन, दिस इज सेकंड ऑक्सीजन, दिस इज थर्ड ऑक्सीजन, दिस इज फोर्थ ऑक्सीजन, दिस इज फिफ्थ ऑक्सीजन, मतलब O5 भी आ गया। यहाँ पे आपका एक OH, यहाँ पे आपका एक और OH, यहाँ पे आपका एक और OH, यहाँ पे आपका एक और OH, मतलब OH होल 4 भी आ गया। उसके बाद 2- चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज पे सोडियम भी बॉन्ड हो सकता है, दैट्स वाई या तो हम सोडियम लिखेंगे या नेगेटिव चार्ज। किसको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स। किसको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई? वेरी गुड। इस स्ट्रक्चर को कभी नहीं भूलना, अगर ये स्ट्रक्चर आते हैं तो बोरेक्स के रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन आएंगे। सो नाउ व्हाट विल बी द टाइप ऑफ क्वेश्चन? अब देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, दिस बोरॉन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दिस बोरॉन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सर रिपीट, अब मैं रिपीट भी करूंगा कोई बात नहीं। एंड दिस बोरॉन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। देखो मैं एक और बार इसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा, लेट मी टेक अ डिफरेंट पेज, मैं इसकी स्ट्रक्चर एक और बनाऊंगा। बोरेक्स की स्ट्रक्चर बनानी है, व्हाट इज द फार्मूला? Na2B4O5, दिस इज द एक्चुअल फार्मूला, OH होल 4, और इसमें दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 8 टाइम्स वाटर। तो दिस इज द फार्मूला। देखो इसकी स्ट्रक्चर बनानी है तो स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे, दिस इज बोरान, पहले 4 बोरान बनाएंगे, दिस इज बोरान, दिस इज बोरान, दिस इज बोरान। अब इनके बीच में BOB बॉन्ड बनाओ, दिस इज BOB, दिस इज BOB, दिस इज BOB एंड दिस इज BOB। क्लियर? इजी है ना? तो यहाँ पे भी एक BOB बॉन्ड बना। अब देखो 1 2 3 4 4 बोरॉन एटम्स आ गए, 1 2 3 4 5 5 ऑक्सीजन एटम्स आ गए। यहाँ पे एक OH लगाओ, यहाँ पे एक OH लगाओ, यहाँ पे एक OH लगाओ, और यहाँ पे एक OH लगाओ, मतलब OH4 भी आ गया। उसके बाद Na2, यहाँ पे Na लगाओ, यहाँ पे Na लगाओ, या यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगाओ, Na के बदले यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगाओ। बस दिस इज द स्ट्रक्चर, B4O5 OH होल 4 2-। तो हम Na2 के बदले इसको लिख सकते हैं B4O5 OH4 2-। वायर फ्रॉम जिस नेगेटिव चार्ज का, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ से आ गई? नेगेटिव चार्ज कम्स फ्रॉम दिस सोडियम। क्लियर? तो देखो दिस इज द स्ट्रक्चर, आपके पास B1 1 2 3 4 4 बोरॉन एटम्स, 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन एटम्स, OH4 1 2 3 4 ऑक्सीजन एटम्स एंड नेगेटिव चार्ज। और ये जो बोरॉन एटम है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और दिस बोरॉन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। दिस बोरॉन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड बिकॉज यहाँ पे बोरॉन के 3 बॉन्ड्स है, दैट्स व्हाई इट्स sp2, यहाँ पे 4 बॉन्ड्स है, दैट्स व्हाई इट्स sp3। क्लियर? क्या ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गई आपको? क्या बोरेक्स की स्ट्रक्चर बनानी आपको आएगी? कैन यू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स ऑन योर ओन? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट मे बी आस्क्ड? क्वेश्चन कौन आ सकते हैं? तो फर्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड ऑन बोरेक्स इज, in borax the correct statement for borax is, the correct statement, इस क्वेश्चन को लिखना हो सकता है डायरेक्टली आएगा, the correct statement for borax is, the correct statement for borax is, number first, each boron in borax is sp2 hybridized. Number second, each boron in borax is sp3 hybridized. Number third, 3 borons are sp2 and 1 is sp3. And number fourth question is, 2 boron atoms are sp2 and 2 are sp3. Tell me what is the answer? And 2 borons are sp3. Tell me what is the answer? Very good. इसका आंसर मुझे बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक पूछा नहीं गया है, खुद से मैंने इस क्वेश्चन को बनाया, अभी तक पूछा नहीं गया है। वेरी गुड वैस, बहुत बढ़िया। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, 2 बोरॉन एटम। बहुत बढ़िया सीरत, वेरी, सीरत थर्ड नहीं आएगा, कहाँ थर्ड आएगा? अरे यार देखो यहाँ पे ये बोरॉन और ये बोरॉन, दीज आर sp2, दिस बोरॉन जिसपे नेगेटिव चार्ज है 1 2 3 4 बॉन्ड्स sp3 एंड दिस इज sp3। क्लियर हुआ सीरत? 2 बोरॉन एटम्स sp2 है और 2 बोरॉन एटम्स sp3 है। मैं इसको डिफरेंट कलर से मार्क करूंगा, दिस इज sp3 एंड दिस इज sp3, दीज टू आर sp2। क्लियर?
वेरी गुड वेरी गुड। sp2, अरे हो मेरा, हाँ 2sp2 2sp3, वेरी गुड मेरा, बहुत बढ़िया। हाँ सीरत, वेरी गुड। तो क्लियर हो गया आपको बोरेक से कैसा क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन ऑफ स्ट्रक्चर बेस्ड, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स इज, द फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स इज, तो बोरेक्स की फॉर्मूला, नंबर फर्स्ट B4O5 OH whole 4 2 minus with 8 molecules of water of crystallization. B4O5 OH4 2 minus with 10 molecules of water of crystallization. देखो कितना कंफ्यूजन हो सकता है भैया। हमारे पास Na2B4O7 with 10 molecules of water of crystallization. एक और हमारे पास Na2B4O7 with 8 molecules of water of crystallization. So more than one answers are correct. This is A, this is B, this is C, this is D. Tell me which one is the correct answer. कौन कौन से इसमें correct answers है? Very good. इनमें से दो आंसर्स करेक्ट है। What are those correct answers? करेक्ट आंसर कौन कौन सा हो सकता है? वेरी गुड। मुझे बता इस क्वेश्चन का आंसर, करेक्ट आंसर्स ए एंड सी। ओएस ने यहाँ पे जवाब दिया ए, तो देखो ए हमारा करेक्ट आंसर है, दिस इज ए, तो दिस इज ए इज करेक्ट। और सी को अगर आप देखेंगे, जब हमारे पास O7 है, देन वे आर वेरी गुड, ए एंड सी। डी नहीं होगा जाकिर, डी कहाँ होगा, क्या कहते हो, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए एंड सी। ये भी हमारे पास बोरेक्स है और ये भी हमारे पास बोरेक्स की फार्मूला है। देखो कितना कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, मतलब अगर आपको थोड़ा सा आपने कम रिवीजन किया है तो आप इस क्वेश्चन को गलत करके आओगे, इजंट इट? डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू इट रॉन्ग। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? थर्ड क्वेश्चन जो आ सकता है, व्हाट इज दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बोरेक्स के स्ट्रक्चर बेस्ड आ सकता है। तो थर्ड क्वेश्चन हम बोरेक्स के स्ट्रक्चर बेस्ड पे लगाएंगे। देखो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन। क्या मैं एक और क्वेश्चन लूंगा? हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? इज इट ओके? हो गया इसका स्क्रीनशॉट। दीज आर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, इसको भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखो, आने वाला एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, अभी नहीं पूछा गया है। दिस इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड, पूछा नहीं गया है। इससे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अब ये क्वेश्चंस रह गए हैं जो अभी पूछे नहीं गए हैं। क्लियर? आई हैव नॉट टेकन दीज क्वेश्चंस फ्रॉम एनी बुक, ये क्वेश्चन मैंने खुद ही बनाए हैं, टेक्स्ट में से ही निकाल। ठीक, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ सकता है, दैट इज द नंबर ऑफ BOB bonds, BOB bonds इन बोरेक्स इज। तो बोरेक्स में आपको बताना है नंबर ऑफ BOB bonds 2, 1, 4 and 3. So what is the correct answer? Very good, 4. 4 is the correct answer. Number of BOB bonds is equal to 4. That's why आपको स्ट्रक्चर जरूरी याद रखने हैं। बहुत बढ़िया बिस्मा, हुमेरा, वैस, महक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ द क्वेश्चन जो अभी पूछा नहीं गया है। क्लियर? तो क्वेश्चन एक आ सकता है यहाँ पे, द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस ऑन बोरान इन बोरेक्स इज, हाउ मेनी नेगेटिव चार्जेस आर देयर? तो टेल मी डायरेक्टली इसका आंसर, 2 नेगेटिव चार्जेस। वेरी गुड, 2 नेगेटिव चार्जेस, बहुत बढ़िया। देयर आर 2 नेगेटिव चार्जेस ऑन 2 बोरान एटम्स। वेरी गुड वेरी गुड। सीरत, जाकिर, 5 BOB bonds, रूफ, वेरी गुड। OS2, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब सब लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। ये बोरेक्स के स्ट्रक्चर के रिलेटेड क्वेश्चन है ना। अब इम्पोर्टेंट बात जो है बोरेक्स की, वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आप बोरेक्स को वाटर के साथ ट्रीट करोगे, मतलब रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे। बोरेक्स की फॉर्मूला क्या है? Na2B2O7, दिस इज फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स। अगर आप इसको वाटर के साथ ट्रीट करोगे, 7 टाइम्स वाटर के साथ ट्रीट करोगे,
तो आपको इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है। सर आपने 4 BOB बॉन्ड्स लिखा, अरे मैंने कहा 4, हाँ 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 हाँ, तो यहाँ पे आप 5 देखो, आप 5 है, 5, इट इज 5। तो देखो BOB, आई हैव मिस्टेकन, BOB 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 BOB, so there are 5, 1 2 3 4 5, so the correct option is third। इसको मैं 5 लिखूंगा यहाँ, एक्चुअली मैंने 5 ऑप्शन ही नहीं दिया था, आई एम सॉरी। तो देखो Na2B2O7 7 टाइम्स वाटर, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है, दैट्स H3BO3, सो दिस इज कॉल्ड ऑर्थोबोरिक एसिड। इसको हमें अभी डिटेल में पढ़ना है, ऑर्थोबोरिक एसिड, दिस इज कॉल्ड ऑर्थोबोरिक एसिड। तो इससे क्वेश्चंस आए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जेई में भी आया है, नीट में भी आया है, इससे दिस इज कॉल्ड ऑर्थोबोरिक एसिड, प्लस यहाँ पे आपका NaOH बनता है ना। तो क्वेश्चन जो यहाँ से नहीं आया है इस रिएक्शन से, वो कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। अगर आप बोरेक्स को वाटर में डिजोल्व करोगे, इफ यू डिजोल्व बोरेक्स इन वाटर, मतलब अब हमारे पास बीकर है और इस बीकर में हमारे पास वाटर का सोल्यूशन है, दिस इज वाटर, वाटर सॉल्वेंट है, और इसमें मैं बोरेक्स को ऐड करूंगा, बोरेक्स को डिजोल्व करूंगा, मतलब दीज आर बोरेक्स क्रिस्टल। तो क्या मिलेगा यहाँ पे 2 कंपाउंड्स बनते हैं, एक बनता है हमारा H3BO3, दैट्स कॉल्ड ऑर्थोबोरिक एसिड, और एक हमें मिलेगा NaO। नाउ ऑर्थोबोरिक एसिड जो है इट्स अ वीक एसिड, दिस इज वीक एसिड, और NaO जो है इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो मुझे बता, क्या ये जो सोल्यूशन है, विल दिस सोल्यूशन बी एसिडिक और अल्कलाइन? क्या ये सोल्यूशन एसिडिक और अल्कलाइन होगा? Will this solution be acidic or alkaline? Now tell me, will this solution be acidic or alkaline? Basic, that's alkaline, very good, very good Ru, मतलब basic alkaline। Why? जो strong component है उसी का effect होगा, strong component है, strong base है, this is weak acid, therefore जो overall solution है that's alkaline। तो question क्या आएगा, question क्या बनेगा यहाँ पे? On dissolving borax into water, on dissolving borax into water, we get a solution. That solution is acidic, basic, neutral, none of these. मुझे बता, what will be basic or alkaline? Tanveer, very good. OS, very good. So Kaisar, very nice. Asmad, very good. Alkaline. Zakir, alkaline. Roof, basic, very good. Alkaline or basic. So this is again one type of question. तो यहाँ पे याद रखना है, ये जो solution बनेगा, this is solution. तो ये जो solution है, it's alkaline in nature. अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, व्हाई द सॉल्यूशन इज अल्कलाइन इन नेचर, बिकॉज यहाँ पे जो ऑर्थोबोरिक एसिड बनता है दैट्स अ वीक एसिड, और यहाँ पे जो बेस बनते हैं दैट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट दैट इज बेसिक कंपोनेंट, सॉल्यूशन बिकम्स अल्कलाइन इन नेचर। क्लियर? दिस सॉल्यूशन बिकम्स अल्कलाइन इन नेचर। इज इट क्लियर? सबको क्लियर हो गया ये? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, विल डिस्कस वन मोर रिएक्शन। Now see how important borax is. Sir, if a question is what? What if a question is, what type of question? Tanveer बोलो ना, if a question is what? तो question भी बोलो। Now next important point है effect of temperature। अगर आप Na2, हाँ यहाँ पे कोई question है, borax is the sodium salt of, it's the sodium salt of what? Na2B4, इसका सोल्यूशन सोडियम साल्ट ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड बनेगा, Na2B4O7 10 टाइम्स वाटर। अगर हम इसको हीट करेंगे, इसको अगर हीट करेंगे तो क्या होगा? हीट करने से हमने देखा, जब भी हम किसी क्रिस्टल को हीट करते हैं तो उसमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो रिमूव हो जाता है, इजंट इट? जब भी हम किसी क्रिस्टल को हीट करते हैं, जो उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है ये रिमूव होता है, तो हमें यहाँ पे मिलेगा Na2B4O7 प्लस यहाँ से 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस होगा। क्लियर? तो इसको अगर आप अगेन हीट करोगे, इसको अगर आप अगेन हीट करोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है। अगर आप इसको अगेन हीट करोगे, मेटाबोरेट बनता है, सोडियम मेटाबोरेट, NaBO2, दिस इज कॉल्ड सोडियम मेटाबोरेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोडियम मेटाबोरेट।
सोडियम मेटाबोरेट बनता है और बोरिक एनहाइड्राइड बनता है प्लस वी गेट B2O3. दिस इज कॉल्ड बोरिक एनहाइड्राइड. बोरिक एनहाइड्राइड. तो ये जो मिक्सचर है सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड का, इट्स कॉल्ड ग्लासी बीड. ग्लासी बीड. दिस इज यूज्ड as a test to detect transition metal ions. Transition metal ions को अगर हमें टेस्ट करना है तो हम टेस्ट करते हैं इसे. इस टेस्ट को कहते हैं बोरेक्स बीट टेस्ट. इट इज नोन एज बोरेक्स बीट टेस्ट. तो दिस इज बोरेक्स बीट. दिस मिक्सचर इज बोरेक्स बीट. This mixture is borax bead and this is called a borax bead test. मतलब हमें कोई ट्रांजिशन मेटल है, फॉर एग्जांपल कोबाल्ट है, कोबाल्ट का क्लोराइड है, कोबाल्ट का ऑक्साइड है, मतलब कोबाल्ट का कोई ऑक्साइड है, कोबाल्ट का कोई साल्ट है, या किसी भी ट्रांजिशन मेटल का साल्ट है. तो हम क्या करते हैं, हमें कोई साल्ट दिया गया है, सॉरी. नाउ लेट अस सी. तो हमें ट्रांजिशन मेटल साल्ट है, ट्रांजिशन मेटल साल्ट है, फॉर एग्जांपल कोबाल्ट का साल्ट है. तो हमें पता नहीं है जिससे कोबाल्ट साल्ट, मतलब हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब दिया गया है, इस टेस्ट ट्यूब में कोई साल्ट दिया गया है, सॉल्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल, सॉल्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल. इट मे बी सॉल्ट ऑफ कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, लाइक दैट. तो दिस इज सॉल्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल. तो हमें पता करना है व्हाट टाइप ऑफ मेटल इज प्रेजेंट इन दिस. इस सॉल्ट में कौन सा मेटल प्रेजेंट है. तो हाउ कैन वी डू इट. अगर आप लेबोरेटरी में ये टेस्ट करोगे यू कैन डू इट. तो आप इस टेस्ट को कैसे करोगे, आप इसको बोरेक्स बीट टेस्ट करोगे. बोरेक्स बीट टेस्ट. तो बोरेक्स बीट टेस्ट से क्या होगा, यहाँ पे जो ट्रांजिशन मेटल होगा लेट दैट इज एम. तो दैट विल फॉर्म दैट विल रिप्लेस दिस सोडियम. तो यहाँ पे बनेगा मेटल मेटाबोरेट. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कोबाल्ट होगा तो कोबाल्ट का बोरेट बनेगा. तो हमें कैसे पता चलेगा ये कोबाल्ट का ही मेटाबोरेट है, इसका कलर हम देखते हैं. तो यहाँ पे जो कलर आता है, अगर कोबाल्ट के साथ बोरेक्स बीट को रिएक्ट करेंगे, Na2B2BO2, अगर इसको रिएक्ट करेंगे एंड B2O3, तो हमारे पास ब्लू कलर आता है इन केस ऑफ कोबाल्ट. दैट ब्लू कलर इंडिकेट्स कि हमारा जो मेटल था यहाँ पे दैट इज कोबाल्ट. इस टेस्ट को बोरेक्स बीट टेस्ट कहते हैं. तो जब भी बोरेक्स बीट टेस्ट होगा तो ट्रांजिशन मेटल का मेटाबोरेट बनेगा. दिस इज द करेक्ट आंसर. क्या ये बात सबको क्लियर हो गई, व्हाट इज बोरेक्स बीट टेस्ट. क्या ये बात सबको क्लियर हो गई, व्हाट इज बोरेक्स बीट टेस्ट. प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू गॉट इट. बोरेक्स बीट टेस्ट क्या सबको क्लियर हो गया. लेट मी नो. बोरेक्स बीट टेस्ट सबको क्लियर हो गया. ये सर वेरी गुड रो, बहुत बढ़िया. तो बाकी मुझे बता, क्या ये बोरेक्स बीट टेस्ट क्लियर हो गया. वेरी गुड. ये हमारा बोरेक्स बीट टेस्ट था. ठीक. तो हमने डिस्कस किया यहाँ पे बोरेक्स को. मुझे नहीं लगता है बोरेक्स में अगर कभी कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, यू कैन नाउ आई थिंक यू कैन डू इट विद ईज. अब मुझे लगता है कि आप इसको आराम से निकालोगे इस टाइप के क्वेश्चन को. बोरेक्स से अगर कोई भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा यू कैन इजीली डू इट. तो 4-5 टाइप के क्वेश्चन जो मैंने बताए यू कैन इजीली डू इट. क्लियर. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑर्थोबोरिक एसिड. दैट विल हार्डली टेक 4 और 5 मिनट्स. ऑर्थोबोरिक एसिड को हम डिस्कस करेंगे. ना नेक्स्ट लिखो ऑर्थोबोरिक एसिड. ऑर्थोबोरिक एसिड. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड. द फॉर्मूला ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड इज H3BO3. So we can represent it like this. इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं BOH होल थ्राइस. BOH होल थ्राइस. This is orthoboric acid. This is the formula of orthoboric acid. This is the formula of orthoboric acid. इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो. नंबर फर्स्ट पॉइंट जो 2-3 बार पूछा गया है जेई में भी नीट में भी, जो ऑर्थोबोरिक एसिड होता है इट्स अ वीक मोनोबेसिक एसिड. It's a weak monobasic acid.
जहां तक हमने पढ़ा है एसिड इज अ स्पीशीज व्हिच गिव्स H प्लस आयन, वी यूज प्रोटॉन। लेकिन आई एम सॉरी, लेकिन जब हम ऑर्थोबोरिक एसिड का डिस्कस करते हैं, इट इज नॉट एसिडिक बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ H प्लस आयन, इट इज नॉट एसिडिक बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ H प्लस आयन। तो देखो अगर मैं ऑर्थोबोरिक एसिड को यहाँ पे बनाऊंगा, दिस इज बोरान, और मेरे पास यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, इट्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, इजंट इट? 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स मींस इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये एक्सेप्ट करता है OH माइनस को, therefore it's a Lewis acid because it's electron deficient, it's weak monobasic Lewis acid लिखेंगे यहाँ पे, it is weak monobasic Lewis acid। now why is it acidic? because it is OH acceptor, it is because it is OH acceptor। ये बहुत ही important point है, this is a very very important point। why it is weak monobasic acid? Lewis acid, हाँ। why is it weak monobasic acid? because it's electron deficient, that's why it's a Lewis acid। since it's electron deficient, therefore it will accept OH, therefore it is OH acceptor, its acidic nature is due to OH acceptor। कितने OH को accept करता है? 1 OH को accept करता है, 1 OH acceptor। तो अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है, अगर इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, that will be equal to molar mass डिवाइड बाय n फैक्टर। n फैक्टर मींस कितने को एक्सेप्ट करता है? n फैक्टर इज 1, एक OH को एक्सेप्ट करता है, दिस इज इक्विवेलेंट वेट। क्लियर? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? इज इट क्लियर टू ऑल? ये बात सबको क्लियर हो गई? इज इट क्लियर टू ऑल? ये बात सबको क्लियर हो गई? बोरिक एसिड, व्हाई इट इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड? it is monobasic, it is acidic because of OH acceptance, not because of H plus ion। वेरी गुड। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है ऑर्थोबोरिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर ड्यू टू द रिलीज ऑफ H प्लस आयन, गलती से भी नहीं लिखना। ड्यू टू द वीक, इट्स वीक ड्यू टू द एक्सेप्टेंस ऑफ OH माइनस आयन, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसका लिखेंगे, अगर मैं इसकी रिएक्शन करूंगा, अगर मैं इसकी रिएक्शन करूंगा NaOH के साथ, अगर मैं इसकी रिएक्शन करूंगा NaOH के साथ, तो व्हाट विल बी द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड? तो देखो पहले मैं NaOH की रिएक्शन करूंगा विद सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज H2SO4। अगर मैं H2SO4 के साथ NaOH की रिएक्शन करूंगा तो क्या होगा? ये मेरा सल्फ्यूरिक एसिड है, दिस इज माय सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जो OH है, दिस ऑक्सीजन विल गेट रिप्लेस्ड बाय Na एंड दिस हाइड्रोजन विल गेट रिप्लेस्ड बाय Na। तो मेरा यहाँ पे बनेगा Na2SO4। क्या यहाँ पे बनेगा Na3SO4, Na3BO3? क्या यहाँ पे ये कंपाउंड बनेगा? क्या यहाँ पे Na इन H को रिप्लेस करेगा? तो मुझे ये वाला पॉइंट आप बताओ। यहाँ पे अगर देखेंगे हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है सोडियम, वी गेट Na2SO4। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा सोडियम? क्या यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा सोडियम? टेल मी गाइस फर्स्ट। तो देखो यहाँ पे दिस इज एसिडिक नॉट बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ H प्लस, तो दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस, दिस प्रोडक्ट विल नॉट बी फॉर्म। ये जो प्रोडक्ट आपका है दिस विल नॉट बी फॉर्मड बिकॉज यहाँ पे आपका H प्लस नहीं निकलता है। दिस इज एसिडिक बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ H प्लस, तो 2 H प्लस निकलेंगे, 2 Na आएंगे। यहाँ पे आपका H प्लस रिएक्ट, H प्लस रिलीज नहीं होगा, दैट्स व्हाई दिस प्रोडक्ट विल नॉट बी फॉर्मड। तो दिस इज नॉट द प्रोडक्ट। क्लियर? दिस इज नॉट द प्रोडक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेक ऑफ NaOH। हाँ सर रिपीटेड वंस, एक बार फिर रिपीट करूंगा, कोई बात नहीं है। तो देखो एक बार फिर देखो, मेरे पास फॉर एग्जांपल H2SO4 है, दिस इज S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड O। अगर मैं इसको NaOH के साथ रिएक्ट करूंगा, NaOH से 1 सेकंड, NaOH से मेरा आएगा क्या? NaOH से मेरा Na प्लस आएगा, इजंट इट? यहाँ से मेरा Na प्लस आएगा और OH माइनस आएगा। तो मैं 2 लूंगा, मेरे पास 2 Na प्लस है। व्हाट विल हैपन? दिस बॉन्ड विल ब्रेक, ये नेगेटिव बनेगा, ये सोडियम को एक्सेप्ट करेगा। दिस बॉन्ड विल ब्रेक, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगी, ये सोडियम को एक्सेप्ट करेगा। मतलब मेरा प्रोडक्ट बनेगा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O Na सिंगल बॉन्ड O Na। मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज Na2SO4। लेकिन अगर मैं वहीं पे ऑर्थोबोरिक एसिड को लूंगा H3BO3, यहाँ पे मैं इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करूंगा,
तो यहाँ पे सोडियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता है जैसा कि यहाँ पे किया। वाई? बिकॉज यहाँ पे दिस इज एसिडिक नॉट बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ H प्लस आयन। तो यहाँ पे आपका Na3BO3 इट इज नॉट फॉर्म, नॉट फॉर्म, बट द कंपाउंड इज फॉर्मड। तो कैसे बनता है, लेकिन ये कंपाउंड मिलता है हमें, तो कैसे बनता है इस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे। ये बात क्लियर हुई, ये क्यों नहीं बनता है? पहले मुझे ये बता, ये बात क्लियर हुई ये क्यों नहीं बनता है? व्हाई इट इज नॉट फॉर्मड? क्या ये बात क्लियर हुई व्हाई इट इज नॉट फॉर्मड? मुझे बता, ये बात क्लियर हुई व्हाई इट इज नॉट फॉर्मड? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मुझे लेकिन इस चीज को बनाना है Na3BO4 को। देखो मैं कैसे बनाऊंगा, देयर इज इनडायरेक्ट वे। तो इसके लिए मेरे पास, वेरी गुड वेरी गुड, तो इसके लिए मेरे पास इनडायरेक्ट वे है। व्हाट इज इनडायरेक्ट वे? पहले मैं H3BO3 को ट्रीट करता हूं विद इथेनॉल, C2H5OH, दिस इज इथेनॉल, 3 टाइम्स इथेनॉल। तो यहां से मेरा कंपाउंड बनता है C2H5O 3 टाइम्स B। तो दिस इज द कंपाउंड दैट इज फॉर्मड। तो यहाँ से ये कंपाउंड बनता है। इस कंपाउंड को फिर अगर मैं ट्रीट करता हूँ किसके साथ? NaOH के साथ, तो यहाँ से मुझे मिलता है Na3BO3। तो लेट अस सी हाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस। इस रिएक्शन का मैं आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म बताऊंगा। तो देखो यहाँ पे बोरान है, OH है, OH है, OH है, इज दिस बोरिक एसिड। तो इथेनॉल के साथ ट्रीट करो, C2, मैं लिखूंगा यहाँ पे CH3CH2OH, दिस इज इथेनॉल। तो लॉस ऑफ वाटर विल टेक प्लेस। लॉस ऑफ वाटर होगा तो BOC2H5, तो यहाँ पे CH2 CH3OH, तो यहाँ पे अगेन लॉस ऑफ वाटर विल टेक प्लेस। तो यहाँ पे CH3 CH2OH, यहाँ पे अगेन लॉस ऑफ वाटर विल टेक प्लेस। तो व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इज फॉर्मड? B यहाँ पे रहेगा, या आपका OCH2 CH3 OCH2 CH3 OCH2 CH3, मतलब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ OCH2H5। क्लियर? क्या ये रिएक्शन क्लियर हो गई? कैसे बनती है ये रिएक्शन, या एक बार फिर बताओ, जल्दी से मुझे बोलो, ये रिएक्शन क्लियर हो गई या एक बार फिर बोलो? मैं एक बार फिर बोलो, या ये रिएक्शन क्लियर हो गई? चलो मैं एक बार फिर बोलूंगा। देखो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास बोरान और इसके साथ अटैच है OH, यहाँ से अटैच है OH, यहाँ से अटैच है OH। मैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल के साथ ट्रीट करता हूँ, C2H5OH, यहाँ से भी C2H5OH, यहाँ से भी C2H5OH। तो व्हाट हैपन्स, यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर होगा। व्हाट हैपन्स, यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर होगा। व्हाट हैपन्स, यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर होगा। तो यहाँ पे क्या रहता है? हमारा बोरान रहता है, और इसके साथ अटैच क्या है? OC2H5, मतलब यहाँ अटैच है OC2H5। लेट मी ड्रा इट लाइक दिस। यहाँ पे अटैच है इसके साथ OC2H5, OC2H5, यहाँ पे भी अटैच है OC2H5, यहाँ पे भी अटैच है OC2H5। तो इसी कंपाउंड को मैंने ऐसे लिखा, OC2H5 होल थ्राइस। क्लियर? क्या क्लियर हुआ ये रिएक्शन? इज इट क्लियर नाउ? क्या ये रिएक्शन आप क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ प्लीज, रेज योर हैंड्स इज इट, इफ इट इज क्लियर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी को अगर मैं, इस कंपाउंड को अगर मैं NaOH के साथ ट्रीट करूंगा, NaOH, तो क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे मेरा Na आएगा, यहाँ पे Na आएगा, यहाँ पे Na आएगा, सॉरी, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे Na आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मतलब Na अब बन गया आपका Na3, और आपके पास B है, और इसके साथ अटैच है 1 2 3 O3। तो दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज इनडायरेक्टली फॉर्म। क्लियर? सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डाइबोरेन को। मुझे बता, किसी को कोई प्रॉब्लम है इस लेक्चर में? कोई भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, यू शुड बी एबल टू डू इट, यू शुड बी एबल टू डू इट। क्या आप लोग इस, मतलब इन 2 टॉपिक्स में से क्वेश्चन कर सकते हो? कैन यू डू एनी क्वेश्चन फ्रॉम दीज 2 टॉपिक्स? Let me know, can you do any question from these 2 topics? Very good Bisma, I hope you all can do it. Sir crystal clear हो गया? Very good, हो गया, we can do it, very good. तो अगर कोई बच्चा, वहां पे कोई बच्चा नीट जो हमारा है, तो यहाँ पे मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दूंगा, नीट 2022
के लिए मेरे पास केमिस्ट्री का बैच ओपन हो गया है। तो अगर कोई बच्चा इस केमिस्ट्री बैच में ज्वाइन कर सकता है तो उसको केम लवर ऐप में ज्वाइन करना है, बिकॉज ऑल क्लासेस विल बी थ्रू केम लवर ऐप। दिस कोर्स इज अ पेड कोर्स। 10 मंथ्स के लिए फी है 5000 ऑन। इट्स अ 10 मंथ कोर्स। हर संडे को इसका एग्जाम होगा, हर चैप्टर के 4 एग्जाम्स होंगे, सो दैट